Title also very different tonight. आज रात जो वचन का शीर्षक है बहुत अलग तरीके से है। It's a kind of a, I make it more simple. I want to say, when the night started singing. और सरल तरीके से मैंने कहा है कि जब रात ने गाना गाना शुरू किया, There is a something about nightlife. रात के जीवन के विषय में कुछ ना कुछ एक खासियत है। Any woman or anyone can actually walk alone in the daytime. कोई भी औरत या कोई भी दिन के समय में अकेले चल सकते हैं, Night time, लेकिन रात के समय में challenging. चुनौती होती है। Even in the railway station platform, also being alone at the platform at the night time is a difficult. रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम रात के समय में अकेले हैं तो बहुत मुश्किल होती है। So I wanted to do something. Let's begin with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते Put हैं। your hands on your heart अपने हृदय पे हाथ रखें, because God loves your heart more than your work. क्योंकि परमेश्वर आपके काम से ज्यादा आपके हृदय से प्रेम करते हैं। Everybody wants your work, everybody wants your hands, God wants your heart. सभी कोई आपसे काम चाहता है, आपके हाथ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को चाहते You हैं। know that people make you to do something for them, but God wants your heart only. हर एक कोई लोग चाहते आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन परमेश्वर केवल आपके हृदय So को let's चाहते हैं। invite Jesus into our hearts. आइए यीशु को हमारे हृदय में आमंत्रित करते Say a हैं। small prayer with me. मेरे साथ मिलके छोटी सी प्रार्थना Let's करें। close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करते Lord हैं। Jesus, प्रभु यीशु, here I am tonight. मैं यहाँ हूँ आज रात। You know everything that I'm going through. आज मैं जिस बात से होकर गुजर रहा हूँ आप जानते You हो। know my situation. आप मेरी परिस्थिति जानते हो। You know my life. आप मेरे जीवन को जानते हो। Every single bit you know. आप हर एक बात को जानते हो। Only you know. केवल आप ही You जानते know हो। more than my parents. आप मेरे माता पिता से बढ़कर You जानते know हो। my best, more than my best friends. आप मेरे सबसे अच्छे मित्र से बढ़कर जानते हो। I come to you. मैं आपके पास आता हूँ। Talk to me, Lord. मुझसे बातें करे प्रभु। One word from your mouth आपके मुंह से एक वचन ही will change my life. मेरे जीवन को बदल देगा। Give that word to my heart. आज मेरे हृदय को वो वचन दे। I ask your presence मैं आपकी उपस्थिति को मांगता as I'm hearing your word. जैसे मैं आपके वचन सुन No रहा हूं। disturbance, कोई परेशानी ना हो, no diversion of my thoughts, मेरे विचार कभी ना भटके, no internet problems, electricity problems. इंटरनेट की और बिजली की समस्या नहीं होगी। Me and you. मैं और आप, Let your word come to me. आपके वचन मेरे पास आने पाए In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। We'll be meditating. It's a kind of a Bible study today we are going to have. आज हम वचन पे मनन करने जा रहे हैं। एक प्रकार का बाइबल अध्ययन होने जा रहा है। We'll be focusing on Acts chapter 16, verse 22 to 34. आज हम प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 32 से 34 वचन 22 से 34 वचन पर ध्यान देंगे। It's actually, I can summarize into 1-2 sentences. दरअसल इस पूरे वचन को मैं एक दो वाक्य में ही कह सकता हूँ। When faith begins to sing in midnight, जब विश्वास आधी रात में गीत गाने शुरू किया, even prison began to shake. यहाँ तक कि सलाखें, जेल की सलाखें थरथराने लग गई। So let's come back. First of all, break out a little bit words about the night time. आइए हम थोड़ा बहुत अभी रात के समय के बारे में हम इन वचनों को हम व्याख्या करते हैं। There is a night every village knows. हर गांव जानता है कि एक हर दिन रात होती है। I have just completed my northeast beautiful trip. और मैंने मेरा नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही सुंदर ट्रिप पूरा किया है। And I was in Arunachal Pradesh and Nagaland and Mizoram, Meghalaya and Assam. मैं ये सारे राज्यों में था मिशन ट्रिप के लिए। And many of you were going through extreme sun heat. आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सूरज का तापमान है, गर्मी से हो रहे I didn't हैं। have that. लेकिन मैंने ऐसा नहीं महसूस There was किया। a heavy rains everywhere we go. जहां भी जा रहे थे बहुत बारिश But होती every थी। time I want to visit somebody home, like our family homes there, लेकिन जब भी मैं हमारे परिवार के यहाँ घर जाना चाहता था, and there was no rain. वहाँ बारिश नहीं होती थी। 15 days before me was a full rain. Entire 15 days. मेरे जाने से पहले 15 दिन पूरा लगातार बारिश हो रही थी। But when I step into that place, लेकिन जब मैं उस जगह पे कदम रखा, for the 2 days, no rain. 2 दिन के लिए बारिश ही And when I say bye bye, और जैसे ही मैंने बाय बाय कहा, rain started right after bye bye. बाय बाय कहने के तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई। Same thing happened almost every place I go.
हर जगह मैं गया ऐसा ही हुआ। But nothing stopped what we planned. लेकिन जो हमने योजना बनाई थी, हमारी योजना में से कुछ भी नहीं This is रुका। something you know that I don't have a big umbrella to stop rain for the entire village. आप जानते हो मेरे पास बड़ा सा छाता नहीं है कि मैं पूरे गांव के लिए बारिश रोक सकूं। But you know that our Lord has a big umbrella. लेकिन आप जानते हैं हमारे प्रभु के पास बड़ा सा छाता है। Whatever is trying to come against you, जो कुछ भी आपके खिलाफ आ रहा है, God has an umbrella for you. परमेश्वर के पास आपके लिए छाता है। Maybe everywhere attack is there. शायद हर जगह पे आपके ऊपर आक्रमण, Just like everywhere rain will be there. जैसे कि हर जगह बारिश होती है, But you will be taken care. लेकिन आपकी देखभाल की जाएगी। Just like how umbrella can take care you. जैसे एक छाता आपकी देखभाल कर सकता So I have seen, I lived in a bamboo houses. है। मैं बांस के घरों में रहा हूँ। So my last 20 days मेरे was very challenging, पिछले 20 दिन बहुत चुनौती भरे but रहे, very beautiful, very blessed. लेकिन बहुत सुंदर दिन, बहुत No अच्छे दिन। sickness, कोई बीमार नहीं पड़ा, very meaningful, very powerful. बहुत सामर्थशाली और बहुत अच्छे समय। But it was not easy. लेकिन ये आसान नहीं था। I also thankful for, I had a, very different types of bamboo bathrooms and open showers. Yeah. बहुत अलग तरीके का अनुभव रहा। बांस के Means बाथरूम public shower. हुए, सब लोग पब्लिक शावर, सबके सामने खुले में नहाया मैं। Those are things are really teaching me something. ये सारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। Till my last breath, I told the Lord, I will never stop traveling to your children's wherever they are. मैंने कहा है प्रभु से कि प्रभु मेरी अंतिम सांसों तक मैं नहीं रुकूंगा, जहां तक आपके बच्चे हैं मैं उन तक पहुंचूंगा। I want you see that if you want to lead your family, अगर you make sure you sit with them on the floor. अगर आप अपने परिवार की अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान देना कि अपने परिवार के साथ जमीन पर बैठे। Sometimes many family leaders thinks that a family need a money, family need a food, family need a education, family need somebody something need to provide. और बहुत परिवार, बहुत अगुए ऐसा सोचते हैं कि परिवार को पैसा चाहिए, खाना चाहिए, जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ये चाहिए। End of the day, your children needs your presence with them on the floor eating. लेकिन आखिर के दिन में आपके बच्चों को क्या चाहिए, वो है आपकी मौजूदगी, कि आप उनके साथ जमीन पर बैठे उनकी सुने। You may not like what I'm saying. शायद जो मैं कह रहा हूँ शायद आपको If पसंद ना every आए। mummy daddy अगर हर एक माता पिता stick with the children अपने बच्चों के साथ बैठे every day whenever it is possible जब भी संभव हो, और अगर अपने बच्चों के साथ बैठेंगे on the floor, जमीन पर, maybe you may have a dining table, but I talk about I lived in a bamboo floors. शायद आपके पास डाइनिंग टेबल होगा, मेज होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसे जगह पे रहा जहाँ बांस का जो फ्लोर था बैठने The best way, if you can sit with your children, you can stop your children from drug problems. सबसे अच्छा तरीका, अगर आप अपने बच्चों के साथ जमीन पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप नशे की समस्या को सुलझा सकते You हैं। can protect your daughters from wrong relationships with a wrong friend. आप अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकते हो, आप उसके गलत दोस्तों के साथ गलत दोस्ती ना पड़ जाए इसलिए। But you got to sit लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, with them on the floor. आपको अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठना पड़ेगा। So I had more nightlife's experience last 20 days. पिछले 20 दिनों में मेरे बहुत अनुभव रहे, खास तौर पे रात के समय के अनुभव। No electricity. बिजली नहीं थी। 2-3 nights I didn't have electricity. 2-3 रात ऐसे रही कि बिजली नहीं थी। When you are in a village, जब आप गांव में हो, top of the mountains, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी I पर, think many of you know that when the electricity gone, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, जब बिजली चली जाती है the whole village is dark. पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। The road is silent. वहां के रोड भी शांत हो जाते हैं, सुनसान हो जाते हैं। Children sleep, बच्चे सो जाते हैं, but one person लेकिन एक व्यक्ति in the house घर में is awake. वो जागता है। This is what I notice most of the places I go. ज्यादातर, अधिकतर जगह पे मैं गया, मैंने ये बात को When नोटिस I'm किया। traveling by motorbike जब मैं मोटर बाइक के साथ in the ट्रैवल remote कर- villages of Arunachal Pradesh and Mizoram अरुणाचल और मिजोरम के छोटे छोटे गांव में or Assam, या आसाम में no lights. बिजली नहीं होती थी। Then the rain comes and then no electricity was there. बारिश होती थी तो बिल्कुल बिजली नहीं रहती थी। But
Children may sleep, बच्चे शायद सो जाते थे, but one person लेकिन एक व्यक्ति was awake. वो जागता था। Mostly a father or mother is awake. अधिकतर एक पिता एक माँ जागते हैं, Because debt, financial debt, is pressing his chest. क्योंकि आर्थिक कर्जा उसके छाती को एक दबाव दे रहा है। A mother is awake एक माँ sometimes कभी कभी रात को जागती रहती है, because she feels her child is going in the wrong direction. क्योंकि वो माँ ऐसा महसूस करती है कि उसका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। Sometimes a young man in the night time awake कभी कभी एक जवान व्यक्ति रात के समय में जागता है, because he feels he has failed in his life. क्योंकि वो जवान व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में असफल हो गया हूँ। Sometimes a young woman कभी कभी एक जवान लड़की is awake रात को जागती है, because her dreams are slowly dying. क्योंकि उसके सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। A farmer is awake एक किसान जागता है, because the clouds came in the evening, क्योंकि शाम के समय में बादल छा गए हैं, but the rain did not come. लेकिन बारिश नहीं आई। Outside, बाहर it is midnight. बाहर ये आधी रात है, Inside, अंदर it is also midnight. अंदर भी आधी रात हो चुकी Are है। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Outside midnight, you understand. बाहर की आधी रात हो गई, आप समझ रहे हैं, Inside midnight means लेकिन अंदर की आधी रात, when nobody understands you, जब कोई भी आपको नहीं समझता है, when nobody sees your pain, जब कोई भी आपके दर्द को नहीं when देखता, nobody believes that you are fighting for your family, जब कोई भी आप पे विश्वास नहीं करता है कि आप अपने परिवार के लिए लड़ रहे when हैं, nobody understands you also have a dream. जब कोई समझता नहीं है आपको कि आपके पास सपने हैं, It's a midnight in the heart. ये आपके हृदय में भी आधी रात हो जाती When है। you see your children are away from your hands, जब आप देखते हो कि आपके बच्चे आपके हाथों से निकल चुके हैं, even daytime also look like a midnight to you. उस समय क्या होता है, दिन के समय में भी आपको लगता है कि आधी रात है। In that midnight, उस आधी रात में one question comes to all of us. एक सवाल हम सबके पास आता है, God, परमेश्वर, where are you? परमेश्वर आप कहाँ हो? Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? That's the reason I came to tell you here is something. यही कारण है मैं आज यहाँ आपको कुछ कहने के लिए आया हूँ। God brought me परमेश्वर मुझे लेके आया just for you. केवल आपके लिए। God is not absent in your midnight. परमेश्वर आपके आधी रात में गैर मौजूद नहीं है। Sometimes the midnight is the place where God begins his greater work. कभी कभी वो आधी गहरी रात ही ऐसी जगह होती है जहां परमेश्वर अपने बड़े काम की शुरुआत करता Open है। your Bible to book of Acts chapter 16. अपना बाइबल खोलें, प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय। Book of Acts is always my heartbeat. प्रेरितों के कार्य की पुस्तक हमेशा मेरे लिए धड़कन है। Paul and Silas were not in a prison because they did wrong. They were in the prison, if you read that Bible. पौलुस और सिलास उस समय कैद में डाले गए थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था। अगर आप पढ़ोगे तो वो उसी समय जेल में थे। They were in prison because they did right. वो लोग कैद में डाल दिए गए क्योंकि उन्होंने सही कार्य किया। Usually, prisons are designed for the people, those who did wrong. आमतौर पे जो जेल होती है किसके लिए बनाई जाती? उन लोगों के लिए जो गलत काम करते हैं। So here, Paul and Silas did not do any wrong, यहाँ पे पौलुस और सिलास ने कुछ गलत काम नहीं किया था, but they were in the prison. लेकिन वो लोग जेल में डाल दिए गए। What did they do? उन्होंने क्या किया ऐसा? They were in the prison because they did right. वो लोगों को जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने सही काम किया। They delivered a slave girl from demonic bondage. उन्होंने एक ऐसी गुलाम लड़की को शैतानिक बंधनों से आजाद किया। But there were people who are using that devil possessed girl and making money. लेकिन वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, उसको इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे थे। There were people who were making money from her pain. ऐसे कुछ लोग थे जो उसके दर्द से ही पैसा कमा रहे थे। They become very angry. वो बहुत क्रोधित हो गए। Do you know sometimes
क्या आप जानते हो कभी You कभी were going through pain, but somebody is making money out of your pain. आप दर्द से होकर जा रहे होते हो और कोई आपके दर्द से पैसा कमा रहा है, फायदा उठा रहा है। I don't know. If you are really in this world, at least one time you will go through this. मुझे नहीं पता है, अगर आप सच में इस दुनिया में रह रहे हो तो आप एक बार तो इससे होकर गुजरोगे ही। If you are a human being, अगर आप इंसान हो, you have to accept this truth. आपको इस सच्चाई को मानना You are going through pain, and somebody is making money. आप दर्द से होकर गुजरे, आपके दर्द से कोई पैसा कमा रहा है। So your prayer is, Lord, deliver me from this pain. आपकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे इस दर्द से छुटकारा दे। And other person prayer, keep them in the pain so that I can live. दूसरा व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है, इसको दर्द में ही रखो ताकि इसके दर्द से मैं पैसे कमा सकूं। You don't believe, eh? आप यकीन नहीं करते हो ना। Let's talk about the hospitals. आइए अस्पताल के बारे में बात करते हैं। What do you think? आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो? What is the secret dream of the hospitals? अस्पतालों का एक छुपा हुआ गुप्त सपना क्या है? Every person should be healthy. अस्पताल का सपना ये है कि सारे व्यक्ति को तंदुरुस्त होना चाहिए। If they pray like that, अगर अस्पताल वाले ऐसा प्रार्थना कर लेंगे, within 6 months, every hospital will be closed. 6 महीने के अंदर सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। There is always somebody is making money, profit out of your pain. हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके दर्द से फायदा उठाता है, आपके Here, दर्द से a पैसे young कमाता है। girl possessed by the demon, but somebody is making money from her pain. यहाँ पे जवान लड़की दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, लेकिन कोई ना कोई उसकी दर्द से पैसा कमा रहा था। God don't like. परमेश्वर को ये पसंद नहीं। So God used the Paul and Silas to deliver the devil from her life. परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को इस्तेमाल किया कि उसको उस दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त थी उसको छुटकारा दे। But the people, those who are making money, they were angry at Paul and Silas. लेकिन जो लोग पैसा कमा रहे थे उस लड़की को इस्तेमाल करके पौलुस और सिलास पे क्रोधित हो गए। Say, angry is not by words. The Bible says they dragged Paul and Silas. और वो क्रोधित हुए ये शब्दों के द्वारा नहीं था, बाइबल में लिखा है उन्होंने पौलुस और सिलास को घसीटा। Dragged means severely beaten. और उनको गंभीरता से मारपीट किया और घसीटा। On the floor, जमीन beaten down पर to the floor. मारा पीटा, जमीन पर गिराया। From there, holding them and dragging them. उनको पकड़ा और उनको घसीटते हुए लेकर गए। The Bible also said they beat them very badly. बाइबल में ये भी कहा गया कि बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा पीटा The गया। Bible also said they threw them into the inner prison. बाइबल में ये भी लिखा गया है कि उन्होंने उनको जो है अंदरूनी ऐसी कैद में रखा गया जो बहुत अंदर थी, गहरी थी। Regular prison is different, inner prison is different. जो आम तौर पे जो जेल होती है वो अलग होती है, लेकिन ऐसी जेल जो बहुत गहरी अंदरूनी होती है। Where my wife Shaini Jamima Susan lives in that city, they have a India's one of the largest central jail. यहाँ पे जो मेरी पत्नी है शाइनी मैडम है, वो जो यहाँ रहती जहाँ पे, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल जेल पाया जाता Very है। big jail. बहुत बड़ा जेल है। And every like a prisons are there. वहाँ जेल है, कैद But खाने हैं। inside the prison, inside inner prison is there. That is for terrorists and that is for murderers, like not normal murderers, like a heavy killers. और कैद खाने हैं वहां पे, लेकिन कैद खानों के अंदर भी ऐसे कैद खाने पाए जाते हैं जहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं या कातिल होते हैं, जो वो कत्ल कर देते किसी का, ऐसे लोगों को रखने के लिए अलग कैद खाने होते It's a dark room. वो कमरे बहुत जहाँ अंधेरा होता है। And the Bible also talk about they were binded in the prison. और बाइबल में ये भी लिखा गया है कि पौलुस और सिलास को उस कैद खाने में बांधा गया। Okay, you need to understand. आपको यहाँ समझना होगा, They were beaten down. उनको मारा पीटा They गया, were dragged, उनको घसीटा गया, very badly beaten. बहुत बुरी तरीके से मारा And they गया। were put into the inner prison, means very pitch dark, heavy torture will be there. और ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां पे बहुत गहरा अंधेरा था और बहुत ज्यादा उनको सताया जा रहा था। And Bible also talk about they were tired, like it with the things, chains. बाइबल में भी ये लिखा गया है कि उन लोगों को जंजीरों से जकड़ा गया था, बांधा गया था। Okay, it's not like a movies that you see one chain here, like that.
ये जैसे आप मूवी में देखते हैं ना, जो कैदी होते हैं, एक चेन इधर जंजीर होती है, एक इधर होती है, ऐसा नहीं था। When you study the Roman government, जब आप जो रोम सरकार के विषय में जब आप पढ़ते हो, how they punish people, they are one of the most cruel government people on the planet. और रोम सरकार के लोग कैसे लोगों को दंड देते थे, वो पूरी जगह बहुत ज्यादा जो है दर्द भरी सजा So देते थे। they put the example, put the chains for Paul and Silas. और उन्होंने पौलुस और सिलास के लिए जंजीरों को डाला। They spread their both legs उनके दोनों जो पैर थे उनको ऐसे फैला दिया, until they get a severe pain. You see that when you stretch, you get a pain. जब अपने आप पैरों को ऐसे फैलाते हो आपको दर्द होता है, जब तक उनको गंभीर दर्द नहीं हुआ तब तक उनके पैरों को फैलाते गए। Then they put the chains. फिर उन्होंने वहां उनके पैरों में जंजीरें डाल So दी। every second is a pain for them. उनके लिए हर सेकंड एक दर्द था। The historical setting was Philip, और वहां पे ऐतिहासिक बात जो ली गई है, a Roman colony where the Roman power was very strong in that area. और उस समय रोम की सरकार की जो पावर थी, ताकत थी, बहुत ज्यादा मजबूत पाई जाती And the थी। Paul and Silas were treated brutally after they obeying God. पौलुस और सिलास को बहुत कठोरता से मारा गया जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। What mistake they did? उन्होंने क्या गलती की They थी? healed a demon possessed girl. उन्होंने एक ऐसी लड़की को चंगा किया जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। Their back were bleeding with the blood उनके जो पीछे पीठ थी वो खून से लथपथ थी, because they chopped them like the skin out. और उन्होंने ऐसे मारा कि मारने से उनके चमड़ी बाहर आ गई। Their feet were locked in stocks. That's what I was telling you. They spread it in a way that they get a pain every second. और उनके पैरों पैरों में भी उनको बांधा गया था, काठ में बांधा गया था, इसीलिए हर घड़ी उनको दर्द होता था। Their bodies were in pain. उनका शरीर दर्द I में want you था। to pay attention here, everybody. Don't miss what God is speaking today. मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन ध्यान केंद्रित करें जो परमेश्वर के पास आज God is आपसे going to speak something here. He's going to deliver something to all of you. परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा है। Their bodies were in pain. उनका शरीर दर्द में था। Their future looked finished. उनका भविष्य ऐसा दिख रहा था कि खत्म हो चुका है। And then Bible says here, और फिर यहाँ पे बाइबल में कहा गया है, about midnight, I'm reading the scripture, मैं वचन verse पढ़ता 25, chapter 16 of Acts. 16 प्रेरित तो क्या है, 16:25 का वचन पढ़ रहा हूँ, 16 का 25। About midnight, और आधी रात the Paul and Silas पौलुस और सिलास were praying प्रार्थना कर रहे थे and singing और भजन गीत गा रहे थे। hymns to the Lord. परमेश्वर के लिए भजन और गीत गा रहे And the थे। other prisoners were listening to them. और दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। You need to understand, आपको यहाँ समझना होगा, other prisoners, दूसरे कैदी, they were not in a regular prison, they were in an inner prison. दूसरे कैदी जो पौलुस और सिलास आम जेल में नहीं थे, उनको बहुत गहरे अंधेरे Inner की prison जेल में is a for only cruel punishment, cruel people. और ऐसी जो अंदरूनी जेल उन लोगों के लिए थी जो कातिल होते थे ज्यादा, जिनको कठोर It's not like a one person killed one person. ऐसा नहीं थी कि जैसे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा। 10, 50, 30, 40 like that killers. उन लोगों के लिए होता था वो जेल जिन्होंने 10, 15, 20 In modern words, कत्ल like किया। a big terrorist, आजकल के समय में कहेंगे कि वो जेल a big rapist. आतंकवादियों के लिए या बलात्कारियों के लिए ऐसी जेल होती Like है। these people are listening when Paul and Silas were singing hymns to God. ऐसे लोग सुन रहे थे जो पौलुस और सिलास परमेश्वर के लिए भजन और गीत गा रहे थे। Listen carefully. This is a great reminder for all of our lives today. ध्यान पूर्वक सुने, आज हम सबके जीवनों के लिए सबसे बड़ी बात है जो हमें याद दिलाई They जा रही did है। not sing after the miracle. उन्होंने चमत्कार होने के बाद गीत नहीं गाए, They sang before the miracle. वो उन्होंने चमत्कार होने से पहले गीत को गाया। They did not worship the Lord after the chains fell off. और जब जंजीरें टूट गई थी, जंजीरें टूटने के बाद उन्होंने आराधना नहीं They की। worshipped the God while the chains were still on. उन्होंने परमेश्वर की आराधना की जब तभी भी वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। That is not ordinary faith. ये कोई साधारण विश्वास नहीं That है, is a prison shaking faith. ये ऐसा विश्वास है जिसने जेल को, कैद खाने को भी हिला दिया।
What I want to say, मैं क्या कहना चाहता हूँ, remember this. इसे याद रखें। The deepest pain सबसे गहरा दर्द, is not always punishment. सबसे गहरा दर्द हमेशा सजा नहीं होता। What mistake Paul and Saul did? पौलुस और सिलास ने क्या गलती की थी? They healed a demon possessed girl. उन्होंने ऐसी लड़की को चंगा किया जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, But they have gone through this severe, लेकिन वो इस गंभीर दर्द से होकर गुजरे, deepest pain. बहुत गहरे दर्द से। That's what Acts chapter 16 says. यही प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय कहता है। Paul and Silas were beaten, पौलुस और सिलास को मारा गया, thrown into prison. को कैद खाने में फेंक। Now listen to me carefully. ध्यान पूर्वक सुने। Sometimes when suffering comes, कभी कभी जब कष्ट आते हैं, people immediately say, लोग तुरंत कहते हैं, maybe God is angry with you. शायद परमेश्वर तुम पे क्रोधित है, Maybe God is angry with me. शायद परमेश्वर मुझ पे क्रोधित है, Maybe I did something wrong. शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, Maybe my faith is weak. शायद मेरा विश्वास ही कमजोर है, Oh, maybe God forgot me. ओ शायद परमेश्वर मुझे भूल चुके हैं। Is it not true? क्या ये सच नहीं है? This is what we will regularly say. हम ऐसा ही कहते हैं ना, This will be our songs when we are in a deepest pain. जब हम गहरे दर्द में होते हैं तो ये हमारा गीत होता है। God is angry with me. परमेश्वर मेरे साथ क्रोधित है, Maybe I did something wrong. शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, Maybe my faith is too weak. शायद मेरा विश्वास बहुत कमजोर है, Maybe God forgot me. शायद परमेश्वर मुझे भूल गए हैं। No. नहीं, Paul and Silas were not beaten because they disobeyed God. पौलुस और सिलास इसलिए नहीं मारे गए थे कि उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, They were beaten because they obeyed God. उनको मारा गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। This is important ये जरूरी है, because in our villages, क्योंकि हमारे गांव में when someone suffers, जब कोई मुसीबत से होकर जाता है, people start talking about. लोग उनके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते Is it हैं। not true? क्या ये सच नहीं है? When you start suffering, जैसे ही आप मुश्किल में पड़ गए, our neighbors became a TV news channels, हमारे पड़ोसी टीवी के न्यूज चैनल जैसे बन जाते हैं, table discussions. बैठ के बातचीत करते हैं। Look at that. Their daughters are still not settled. देखो देखो, उनकी बेटियां अभी तक सेटल नहीं हुई हैं। Oh, they did too much hangama on wedding day. Still, they don't have a child for their daughter. देखो देखो, शादी के समय में इतना हंगामा कि अभी तक उनकी बेटी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। Oh, their son got a job, but still today nothing is happening in his life. देखो, उनके बेटे को नौकरी लगी, अभी तक इनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। You see, God is punishing them. देखो, परमेश्वर उन्हें सजा दे रहा है। Yeah, is it not true? When someone suffer, people start talking. क्या ये सच नहीं है? जैसे ही कोई मुसीबत में पड़ता है, लोग उनके बारे में बातें बनाना शुरू What they talk? करते हैं। क्या बातें करते हैं? Maybe their family did something. शायद इन लोग के परिवार ने कुछ गलत किया है। Another bad word is nowadays I'm hearing some people are telling you that, oh, maybe you have some curse. आजकल एक और बुरा शब्द सुन रहा, लोग बोलते हैं शायद तुम्हारे ऊपर कोई श्राप हो। Oh, maybe there is some curse. शायद तुम्हारे ऊपर कोई श्राप होगा। Even sorry to say, some people, some ministries also conducting some prayers और माफी चाहता हूँ ये कहने के लिए, कुछ सेवक ऐसे प्रार्थना करते हैं to the believers, and they were telling, you come to our prayer meeting, we will remove the curse. ऐसा बोलते हैं, हमारी प्रेयर मीटिंग में आओ, आपके सारे श्राप हम हटा देंगे। Don't entertain the curse. श्राप को इतना बढ़ावा मत दो, Entertain the Jesus. यीशु मसीह को ऊंचा उठाओ। The moment you receive him, there is no curse in your life. जिस क्षण आप यीशु को ग्रहण करते हो, आपके जीवन में श्राप रहता But ही some नहीं। people, when you are suffering, they will say, maybe there is a curse in your life. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप मुश्किल में जा रहे हैं, कहते हैं शायद तुम्हारे जीवन में कोई Some श्राप people है। say, oh, God is punishing them. कुछ लोग बोलते हैं, ओ परमेश्वर इन लोगों को सजा दे रहा है। Maybe they are not spiritual enough. शायद ये लोग ज्यादा आत्मिक नहीं है। Be careful. ध्यान पूर्वक रहें, You सावधान don't रहें। talk these things about you. आप अपने बारे में ये बातें मत करो, You don't talk these things about somebody else. और ये बातें किसी और के बारे में भी मत करो। Even if your enemy is struggling, अगर आपके शत्रु भी मुश्किल में है, तब भी don't say these words. ये शब्द कभी मत कहें। Not every pain is a punishment. हर एक दर्द सजा नहीं होती। Not every prison is because of sin. हर एक कैद खाना पाप के कारण नहीं होता है। Not every delay is a rejection.
हर एक देरी नकारी नहीं Not जाती है। every attack means God left you. आपके ऊपर हर आक्रमण हो रहा है, हर आक्रमण का अर्थ ये नहीं होता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। Sometimes the enemy attacks. कभी कभी शत्रु आप पे आक्रमण करता है। The enemy attacks you शत्रु आप पे आक्रमण करता है because your obedience to Jesus क्योंकि आप यीशु के लिए आज्ञाकारी होते हो। is disturbing the enemy's business. आपकी आज्ञाकारी जो यीशु मसीह के प्रति है वो शत्रु के कामों को परेशान कर रहा है। Your songs to Jesus is disturbing enemy business. आपके जो यीशु के लिए गीत है वो शत्रु के कामों को परेशान करते हैं। Your faith on Jesus is disturbing Jesus enemy. आपका विश्वास जो यीशु मसीह पे है वो आपके शत्रु को परेशान कर रहा है। Paul and Silas delivered one goal. पौलुस और सिलास ने एक लड़की को ही छुटकारा दिलाया। Only one goal, not even village. एक ही लड़की को, पूरे गांव को भी नहीं। But behind that girl, लेकिन उस लड़की के पीछे there was a system making money from that bondage. उस लड़की के पीछे एक सिस्टम था जो उस लड़की के बंधनों से पैसा कमा रहा था। When you obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, you don't only disturb one problem, आप केवल एक ही समस्या को परेशान नहीं करते हो, you disturb the system. आप वहां के सिस्टम को हिला देते When a young हो। person decide to stop drinking alcohol, जब एक जवान लड़का शराब पीने के लिए निर्णय लेता है, he is not just protecting himself, he is disturbing the system. और वो अपने आप को ही नहीं सुरक्षित कर रहा है, वो क्या प्रणाली है उस प्रणाली को परेशान कर रहा है। Imagine if one village stop drinking, government will cry. सोच के देखो, अगर एक गांव शराब पीना छोड़ देगा तो सरकार रोएगी। If one district stops alcohol, अगर एक पूरा जिला शराब पीना बंद कर देगा, imagine. सोच के देखो। When a woman says, my children will not live in fear like I lived. जैसे एक माँ कहती है, जैसे मैं डर में जी हूं मेरे बच्चे वैसा नहीं जिएंगे। A system is disturbed. Devil system is disturbed. जो शैतान का सिस्टम है वो सिस्टम परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। When a man says, जब एक व्यक्ति कहता है, from today, आज से लेकर my house will serve the Lord. आज से लेकर मेरा घर परमेश्वर की सेवा करेगा। A system is disturbed. एक सिस्टम वहां पे परेशान होता है। So don't be surprised हैरान मत हो जाएं when pressure comes after obedience. जब आप आज्ञा मानते हैं और आज्ञा मानने के बाद आपके ऊपर दबाव आता है। Sometimes कभी कभी pain is not proof that you failed. कभी कभी दर्द ये सबूत नहीं होता है कि आप फेल हो गए हैं। Sometimes कभी कभी pain is proof दर्द इस बात का सबूत होता है that hell is afraid of what you are carrying. कि नरक उस बात से डर रहा है जो जिसे आप लेकर चल रहे हैं। Paul and Silas were in inner cell. पौलुस और सिलास ऐसी जेल में डाले गए जो बहुत गहरी और अंधेरे में थी। The inner cell was the darkest room. जो वो जेल थी, कैद खाना था, सबसे अंधेरे का था। Most secure, nobody can release them. कोई भी उन्हें छुड़ा नहीं सकता था वहां से, इतना ज्यादा गहरा था। The way they put the chains to their hands and legs to create more pain, increase their pain. जैसे उन्होंने उनके हाथ और पैरों में जंजीरें बांधी थी, इस तरीके से बांधी थी कि उनका दर्द हर घड़ी बढ़ता Actually, जाता। why they want to increase their pain is because they want to break their will. और दरअसल क्यों वो उनके दर्द को बढ़ाना चाहते थे? क्योंकि उनकी इच्छा को तोड़ना चाहते थे। The enemy wanted to break their bodies. और शत्रु उनके शरीरों को तोड़ना चाहता था। But more than that, the enemy want to break their song. लेकिन उससे बढ़कर शत्रु उनके गीत को तोड़ना चाहता था। Because if enemy can steal क्योंकि यदि शत्रु उनसे चुरा सकता है your song, शत्रु अगर आपसे आपके गीत को छीन सकता है, he can weaken your spirit. तो वो शत्रु आपके आत्मा को कमजोर कर सकता है। I always use this illustration. मैं हमेशा इस उदाहरण को इस्तेमाल करता When a हूँ। buffalo or cow tied to the one pole from the childhood, जब भैंस या गाय जब वो छोटे होते, बछड़े होते, तभी उनको बांधा जाता है। after some time, कुछ समय के बाद when the rope is removed, यहाँ तक कि उनके रस्सी हटा दी it गई है, still stands there. फिर भी वो गाय भैंस वहीं पे खड़े रहते हैं। Why? क्यों?
because the rope was removed from the neck क्योंकि वो रस्सी उनकी गर्दन से हटा दी गई है to the mind. और अभी वो रस्सी उनकी गर्दन से तो हट गई लेकिन उनके मन में अभी भी है। So rope was removed from here, but not from the mind. गर्दन से तो रस्सी हटा दी गई लेकिन उनके मन से नहीं। Many believers are like that today. आजकल बहुत सारे विश्वासी है। God has forgiven each and every one of you, परमेश्वर ने प्रत्येक को आपको क्षमा कर but दिया the shame is still there, लेकिन अभी तक आपके अंदर शर्मिंदगी है, holding them back. अभी भी वो आपको पीछे खींच God रही है। has called them, परमेश्वर ने उनको बुलाया but है fear is still holding them back. लेकिन डर अभी भी आपको पीछे God खींच has रहा है। opened the doors for you, परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजों को खोल but दिया है, old things are still holding you back. लेकिन पुरानी बातें अभी भी आपको पीछे खींच रही हैं। Paul and Silas पौलुस और सिलास had chains on their feet, उनके पैरों में जंजीरें बांधी गई थी but they did not have chains on their faith. लेकिन उनके विश्वास पर कोई जंजीरें नहीं थी। Their bodies were locked. उनके शरीर बांधे गए थे Their worship was free. लेकिन उनके आराधना में वो आजाद। Everybody say with me tonight. सभी जन मेरे साथ में I want you to see a deliverance in your life. मैं आपके जीवन में एक छुटकारा देखना Stay चाहता with हूँ। me, everybody. सभी जन मेरे साथ My situation may be locked, मेरी परिस्थितियां शायद बंधी होंगी but my faith is not locked. लेकिन मेरा विश्वास नहीं बंधा है। Say it again with me. फिर से मेरे साथ मिलकर My कहें, situation may be locked, शायद मेरी परिस्थितियां बंधी हुई हैं but my faith is not locked. लेकिन मेरा विश्वास नहीं बंधा है। That's what we see it. यही हम देखते हैं। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता within हूँ a few days, कुछ दिनों के अंदर I'm ही taking a small team with me मैं मेरे साथ छोटी सी टीम लेके जा रहा हूँ by the car कार के द्वारा and traveling और ट्रैवल कर रहा हूँ by road. रोड से ही Orissa, Jharkhand, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Jammu Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and coming back to home. और मैं ये सारे राज्यों में कार के द्वारा ट्रैवल कर रहा हूँ और फिर वापस लौट रहा हूँ। All of the states. ये सारे राज्यों में जितने राज्यों के नाम लिए By faith. विश्वास के द्वारा। 2 days back, I had a meeting with some of our TLCI family members. 2 दिन पहले कुछ हमारे टीएलसीआई के परिवार के सदस्य उनके साथ मीटिंग था मेरा। I told them, मैंने उन्हें कहा sow something in this mission. इस मिशन के लिए कुछ ना कुछ विश्वास का बीज बो। You can pray for us आप हमारे लिए प्रार्थना कर because सकते we हो truly need it. क्योंकि सच में हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। It's around 7 to 9,000 kilometers plus. It can be even 11,000 kilometers. हम 7-8 हजार 11,000 तक भी हो सकता है, 11,000 किलोमीटर तक हम लोग सफर करेंगे। By faith, we started. विश्वास के द्वारा हम शुरू कर रहे हैं। I'm not teaching you what I'm not practicing. मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, जो मैं नहीं कर रहा मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। The car that we are going to use has so many challenges. So I gave it in the repair service. जो कार हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कार में There's a big bill is going to come tomorrow. बहुत सारी दिक्कतें थी, समस्या थी, तो मैंने रिपेयरिंग के लिए दी और कल कार का बड़ा बिल आने वाला है। Petrol, पेट्रोल के लिए every place we go, हर जगह हम जाएंगे, everything is challenging. सब कुछ चुनौती भरा होगा। So I told to our family, like students and leaders, मैंने हमारे जो जितने भी परिवार थे, स्टूडेंट्स every 100 rupees you give is a matters. हर एक 100 रुपए आप दोगे ये मायने रखता है। Will take me to the 100 kilometers. हर एक 100 रुपया मुझे 100 किलोमीटर तक लेके जाएगा। My situation may be locked, शायद मेरी परिस्थिति बंधी हुई है but my faith is not locked. लेकिन मेरा विश्वास बंधा हुआ नहीं। So I will come back to you again another victory night. तो फिर से एक और विक्ट्री नाइट में मैं आपके पास आऊंगा वापस। I will tell you मैं आपको बताऊंगा, how amazingly God provided every single day. मैं आपको फिर बताऊंगा कि परमेश्वर ने हर दिन कितनी अच्छी रीति से मेरी जरूरतों को पूरा किया। Not because we have money. इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा है, Situation is locked. परिस्थितियां बंधी हुई हैं। I told you not. Still car did not come because I have to pay big bill tomorrow. मैंने आपको बताया ना,
अभी तक भी कार नहीं आया, कार के लिए बड़ा सा बिल देना पड़ेगा उसके लिए। But as I said, I want you to have a deliverance in your life. लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में छुटकारा हो। That's why I said with you. इसीलिए मैंने आपके साथ में It's a ये कहा। declaration over our ये lives. हमारे जीवन पर घोषणा My है। situation may be locked, शायद मेरी परिस्थिति बंधी but होगी, my faith is not locked. लेकिन मेरा विश्वास नहीं बंधा होगा। Midnight is the where real faith speaks. आधी रात ही होती है जहाँ पे सच्चा विश्वास। The Bible says midnight. बाइबल में वहां कहा है कि आधी रात। Why is the midnight important? क्यों आधी रात जरूरी है? I hope many times people preach from the scripture. Everybody talk about they worship this the Lord and God delivered them. और बहुत बार बहुत लोगों ने इससे वचन का प्रचार किया है, और कि पर वो लोग आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। But today you are hearing many times about midnight, midnight, midnight. लेकिन आज आप सुन रहे हो बहुत बार ये शब्द, आधी रात, आधी रात, आधी रात। Why midnight is important? क्यों आधी रात जरूरी है? Midnight is when the body is tired. आधी रात तब होती जब हमारा, आधी रात में हमारा शरीर थका हुआ होता है। Midnight is when fear became a louder. आधी रात में हमारा डर और भी ज्यादा जोर से बोलने लगता है। Midnight is when no one is watching. आधी रात तक, आधी रात में कोई भी आपको नहीं देख रहा होता। Midnight is when hope feels far away. आधी रात में ही ऐसा लगता है कि हमारी आशा बहुत दूर है। So that's why God makes sure that the writer of the book of Acts use the word midnight. इसीलिए परमेश्वर ने ये बात को जरूर ध्यान दिया कि प्रेरितों के कार्य को लिखने वाला जो लेखक है उसने शब्द इस्तेमाल किया That's आधी why रात। Manpreet I said, book of Acts mentioned midnight. इसीलिए प्रेरितों के कार्य में आधी रात, अर्धरात्रि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। Yeah, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Anybody can praise God at daylight. कोई भी दिन की रोशनी में परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। Anybody can praise when the salary is there. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जब तनख्वाह मिल जाए। Anybody can praise when marriage is peaceful. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जब उनके शादीशुदा जीवन में शांति रहती Anybody है। can praise when children are doing well. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जब उनके बच्चे ठीक ठाक हैं। Anybody can praise when doctor says all reports are normal. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जब डॉक्टर कहते हैं सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। Anybody can praise when people clap for you. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। What do you do लेकिन आप क्या करते हो when nobody claps? जब आपके लिए कोई भी ताली नहीं बजाता है? What do you do आप क्या करते when हो the door closes? जब आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं? What do you do आप क्या करते when हो prayer seems unanswered? जब आपकी प्रार्थना लगती है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? What do you do आप क्या करते हो when your own people misunderstand you? जब आपके खुद के लोग ही आपको गलत समझ जाते हैं? What do you do आप क्या करते हो when your own family does not believe in your calling? जब आपके खुद के परिवार आपकी बुलाहट पर विश्वास नहीं? That is where real faith speaks. वहीं पे ही एक सच्चा विश्वास। Paul and Silas did not preach a sermon पौलुस और सिलास ने कोई प्रचार नहीं किया in prison. उस कैद खाने में। They sang a song. उन्होंने गीत गाए। Their wounds became their pulpit. उनका घाव का, उनका जो पुलपिट बन गया, एक उनके लिए मंच बन गया। Their chains became their microphone. उनकी जंजीरें उनका माइक्रोफोन बन गया। Their prison became their church. उनका वो जेल ही उनका कलीसिया बन गया। Pay attention here. यहाँ पे ध्यान केंद्रित। We are having a Bible study. हम बाइबल अध्ययन कर, It's not just preaching you to inspire you or make you excited. ये इसलिए नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आप बहुत उत्सुक हो जाओगे इसको सुनने के बाद। Something you and me needed tonight. आज रात मुझे और आपको कुछ ना कुछ इससे जरूरत है। Their prison became their church. उनका कैद खाना ही उनके लिए उनका चर्च बन The गया। Greek word they used in the Bible for singing hymns. बाइबल में ग्रीक भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो भजन गीत गाने के लिए। It shows audible, intentional praise. ये कहलाता है कि इरादे रखकर और ऊंची आवाज से जो स्तुति की, Not silent. चुपचाप शांत होकर It's not a नहीं, silent feeling.
और ये कोई ऐसे शांत होके बैठने क्या नहीं था, ऐसी भावना नहीं थी। We are hardly cannot pray when we get a headache. जब हमें सर दर्द होता है, सर दर्द के समय में हम मुश्किल से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। Yeah, remember Divya, in when of our some of family members get a headache, they put the chunni here like tight. दिव्या, याद है जब हमारे कुछ परिवार के सदस्य सर दर्द होता है तो चुन्नी कस के इधर माथे पे बांध लेते हैं। It's like I think chunnis are more powerful than jandu balm or tiger balm. मुझे लगता है चुन्नी बांधना झंडू बाम से ज्यादा पावरफुल है। But I'm not talking about you, even for me also. मैं It's not easy when you are going through pain, singing a song intentionally. मैं आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में भी कह रहा हूँ, जब हम दर्द में होकर जा रहे हैं उस समय गीत गाना आसान नहीं, वो भी इरादे रखकर सचमुच में गीत गाना। But the Bible says, लेकिन बाइबल में कहा गया है, listeners were listening. बाइबल में कहा गया कि दूसरे कैदी भी सुन रहे थे। Killers, murderers, rapists, terrorists are listening. They're intentional, audible praising God. वहां के जो कैदी थे, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने कत्ल किया था, वो परमेश्वर की स्तुति को सुन रहे थे, जो ऊंची आवाज में की जा रही थी और इरादे रख के की जा रही What I'm saying here, their worship service has an audience. थी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पौलुस और सिलास का वर्शिप सर्विस चल रहा था, वहां पे भी ऑडियंस थी, वहां पे भी लोग थे। The prisoners were audience. कौन थे उनके लोग? वहां के कैदी उनके लोग थे, सुनने वाले लोग। What I'm saying, मैं क्या कह रहा हूँ, whether you have a pain or not, always remember people are listening to you. आपके पास दर्द हो या ना हो, लेकिन हमेशा याद रखें, लोग आपको सुनते हैं। क्या मैडम जी सही बोला ना? Whether you have a pain or not, people are listening to you. आपके पास दर्द हो या ना हो, लेकिन लोग हमेशा आपकी सुनते हैं। When you have a pain, जब आपके पास दर्द है, people will listen to you more. लोग और ज्यादा आपको सुनते हैं। Is this person is going to give up? क्या ये व्यक्ति अभी हार मान देगा? Is this person is going to stop? क्या ये व्यक्ति अभी रुक जाएगा? Is this person is going to die? क्या ये व्यक्ति अभी मर जाएगा? Remember, याद रखें, people are listening to you. याद रखें, लोग आपको सुन रहे हैं। Your children are listening to you. आपके बच्चे आपको सुन रहे I हैं। told you one of my testimony. मैंने आपको मेरी एक गवाही By the way, बताई। today pray for my mother and my sister Rachel. Both आज of them happy birthday today. प्रार्थना करें, आज मेरी बहन है, रेचल मैडम है, और उन सर की मम्मी है, दोनों का आज जन्मदिन है। I remember मुझे याद है, my mother was telling when we are going through extreme financial challenges, when we don't have even food to eat. मुझे याद है जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल आर्थिक स्थिति से होकर जा रहे थे, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था, Some ऐसी of our स्थिति में good थे। family members, like church members, came and gave 5,000 or some amount of money to mummy daddy and told them, please take your children, run away tonight because you cannot clear up these financial burdens. हमारे कुछ चर्च के सदस्य, कुछ लोग आए, कुछ 5,000 पैसा दिया और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जितना कर्जा तुम पे आ गया है तुम नहीं दे पाओगे, तो भाग जाओ यहाँ से। And I remember my parents were telling. मुझे याद है मेरे माता पिता उस समय कह रहे थे। I told you already, but this is a testimony time. मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन ये गवाही का समय है। They said, उन्होंने कहा, until God comes down जब तक परमेश्वर यहाँ ना उतर जाए and kills us like this, और परमेश्वर यहाँ उतर के हमारी गर्दन पकड़ के हमें ना मार दे, we will not leave this place. तब तक हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। I listened that. मैंने उसे सुना था। I was a little boy. मैं छोटा था ही उसी समय, I छोटा listened था, that. और मैंने उसे सुना। How to not to give up in the most painful times. मैंने उस समय सुना कि सबसे दर्द भरे समय में भी कैसे हार नहीं माननी। Dear family, प्रिय परिवार, remember people are listening. याद रखें, लोग आपको सुन रहे हैं। Your children are listening. आपके बच्चे आपको सुन रहे हैं। Your neighbors are listening. आपके पड़ोसी आपको सुन Your रहे हैं। relatives are listening. आपके रिश्तेदार Your आपको village सुन is रहे हैं। listening. आपका गांव आपकी सुन रहा है। Your staff, team members are listening. आपके टीम मेंबर, आपके स्टाफ आपकी सुन Your रहे हैं। church is listening. आपके चर्च के लोग आपकी सुन रहे हैं। By the way, your enemies are listening. आपको कह दूं,
कि आपके शत्रु भी आपकी सुन रहे हैं। Manohar, your enemies are listening. आपके शत्रु भी सुन रहे हैं। Gurmeet Masi sir, your enemies are listening to you. आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपकी सुन रहे हैं। They may not listen when you quote the Bible verse, जब आप बाइबल के वचन खोल के बोलेंगे, शायद उस समय शत्रु ना सुने आपको, but they will listen when you suffer with faith. लेकिन जब आप विश्वास में मुश्किल में जूझ रहे हो, They may not read Matthew, Mark, Luke, and John in the Bible, शायद वो बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ना पढ़े, but they are reading your life. लेकिन वो शत्रु आपके जीवन को पढ़ रहे हैं। So the question is not only what am I going through, सवाल ये नहीं है कि मैं किस बात से होकर गुजर रहा हूँ। this is a question you and me need to ask. ये सवाल है जो मुझे और आपको पूछना होगा। Divya, write it down this. इसे लिखें। Ready? तैयार हो लिखने के लिए दिव्या? Yeah. Neelmani, write down. सभी तैयार हो आप इसे लिखने के लिए? What is my pain preaching? मेरा दर्द में प्रचार क्या है? What is my pain preaching? मेरा दर्द क्या प्रचार कर रहा है? Is your pain preaching bitterness? क्या आपका दर्द कड़वाहट का प्रचार Is कर रहा your है? pain preaching fear? क्या आपका दर्द डर का प्रचार कर रहा है? Is your pain preaching anger? क्या आपका दर्द क्रोध का प्रचार कर Is रहा your है? pain preaching revenge? क्या आपका दर्द बदला लेने का प्रचार कर Or रहा है? is your pain preaching God is still faithful? क्या आपका दर्द ये प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर अब भी विश्वास योग्य Is है? your pain is preaching Jesus is still Lord? क्या आपका दर्द ये प्रचार कर रहा है कि मेरा यीशु अभी भी प्रभु है? Is your pain is preaching my story is not over? क्या आपका दर्द अभी भी ये प्रचार कर रहा है कि मेरे अभी तक भी मेरे सब खत्म नहीं हुआ है? Is your pain is preaching my chains are not stronger than my God? क्या आपका दर्द ये प्रचार कर रहा है कि मेरा दर्द मेरे विश्वास से बढ़कर नहीं है? Knowingly, unknowingly know the truth, you were preaching to somebody. जानबूझकर या अनजाने में आप ये सच्चाई जाने कि आप किसी को प्रचार कर रहे हो। My Jammu brother Deepak is preaching to me. मेरे जम्मू में जो भाई है दीपक, वो मुझसे प्रचार कर रहा है। That's why when I saw him first time I cried. इसीलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं रो पड़ा। Again when I went I cried. फिर से जब मैं गया, फिर से मैं If रो। I go back again I will cry. फिर से जब मैं जाऊंगा तो फिर से रो। Because he's preaching to me. क्योंकि वो मुझे प्रचार कर रहा है। I think 90% he will be never missing our victory night. 90% तक, अधिकतर कभी भी हमारी विक्ट्री नाइट मिस नहीं करते। He's preaching something. वो कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं, Knowingly, unknowingly. जानते हुए या अनजाने में। Every time I see, हर समय जब मैं उन्हें देखता हूँ, he's saying, my chains are not stronger than my God. और मैं उसे देखता और वो कहता है कि मेरी जंजीरें मेरे परमेश्वर से मजबूत नहीं है। He's saying, Sarji, my story is not over. वो कहता है कि सर जी, मेरी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। I'm in the victory night. मैं विक्ट्री नाइट में हूँ। Rajendra Masi sir, राजेंद्र मसीह सर, you preached a powerful sermon. आपने बहुत सामर्थ्यशाली प्रचार किए हैं। My story is not over. आपकी कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है। This is where I must speak strongly. और यही मुझे मजबूत रीति से बोलना होगा। Some believers here कुछ विश्वासी सुनते हैं, allowed their pain to become their pastor. कुछ विश्वासी अपने दर्द को ही अपना पास्टर बना लेते हैं। Your pain is not your pastor, Mahalog. आपका दर्द आपका पास्टर नहीं है। Jesus. यीशु, Jesus is your shepherd. यीशु आपका चरवाहा है। Pain tells them, दर्द उन्हें कहता है, don't trust again. उनका दर्द उन्हें कहता है कि फिर से भरोसा मत करना। Pain tells them, दर्द उन्हें कहता है, don't pray again. फिर से प्रार्थना मत करना। Pain tells them, कहता है, don't dream again. सपना मत देखना। Pain tells them, दर्द उन्हें कहता है, don't serve again. फिर से सेवा मत करना। Pain tells them, दर्द उन्हें कहता है, don't love again. फिर से प्यार मत करना।
Pain is not your pastor, dear. मेरे प्रियो, दर्द आपका पास्टर नहीं है, Fear is not your prophet. और डर आपका भविष्यद्वक्ता नहीं है। Some of you have a great prophet, is a fear prophet. आप में से कुछ लोग के पास बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है, वो You are भविष्यद्वक्ता है। believing all the prophecies of the fear prophet says. आप जो भी आपका डर भविष्यवाणी करता है सब सुनते हो। Circumstances are not your Bible. कि परिस्थितियां आपका बाइबल नहीं है। The word of God must lead you. परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करने पाए। David said in the Bible, बाइबल में दाऊद कहता है, why my soul और कहता है कि हे मेरे प्राण, are you downcast? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा है? Why so disturbed हे मेरे मन तू क्यों इतना संकट में है? within me? मुझ में ही। Usually we will say these things to God. आमतौर पे हम ये बातें कहते हैं, पर God, why I'm so disturbed? परमेश्वर मैं क्यों इतना परेशान? Pastor, why I'm so distressed? पास्टर मैं क्यों इतना परेशानी में रहता हूँ? Why this always problem? पास्टर क्यों समस्याएं हमेशा? I prayed 100 times, still no breakthrough. मैंने 100 बार प्रार्थना की, अभी भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। Pay attention ध्यान केंद्रित करें। what the David did in the Bible. बाइबल में दाऊद ने क्या किया? He said, hello, उसने कहा, why are you so disturbed? उसने अपने आप को कहा, हे मेरे मन तू क्यों इतना दुखित है? He's not talking to God. दाऊद यहाँ परमेश्वर से बातें नहीं कर He's रहा। not talking to anybody. दाऊद यहाँ किसी और से बातें नहीं कर रहा। He's telling to himself. दाऊद अपने आप से कह रहा है। Why are you so downcast? दाऊद अपने आप से कह रहा है कि तू क्यों Why are you so disturbed? तू क्यों इतना परेशान है? Put your hope on God. अपनी आशा परमेश्वर Are पर you रख। preaching to yourself? क्या आप अपने आप को प्रचार कर रहे हैं To put your hope on God. कि आप अपनी आशा परमेश्वर पर रख? Are you preaching to yourself when you are going through toughest times? जब आप मुश्किल समय में होकर जा रहे, क्या आप अपने आप से प्रचार करते Don't हैं? give up, oh my soul. हे मेरे प्राण, अब हार मत मान। It is easy to cry when everything is tough, जब सब कुछ मुश्किल है उस समय रोना आसान है, but it is difficult to speak. Preach to yourself. लेकिन अपने आप को प्रचार करना बहुत मुश्किल है। Preach like David. दाऊद के जैसे प्रचार करो। Why are you so disturbed within me, soul? हे मेरे मन, तू क्यों अपने आप में परेशान है? Why my soul is so downcast? क्यों मेरे प्राण इतने ज्यादा संकट में है? Put your hope in God. अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए रख। Psalms 42:5. This is the one it says that. 42 अध्याय 5 वचन ये कहता है। सोनिया दीदी जैसे अनुमति दीदी बने बहुत फेमस हो गई। David did not let his soul lead him. दाऊद ने अपने मन को अनुमति नहीं दी कि उसका मन उसकी अगुवाई करे। David spoke to his soul. उसने अपने मन से बात की। Stop sharing your problems to everybody. सभी को अपनी समस्याएं बताना बंद करो। Don't you know nobody cares your problems? क्या आप नहीं जानते कोई आपकी समस्या की परवाह How नहीं many करता? times I told you? मैंने कितनी बार आपको कहा You will है, never have a breakthrough until you cry in the presence of God. कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकोगे जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहोगे। Nobody cares your pain. कोई भी आपके दर्द की परवाह नहीं So you करता better to है। preach to your soul. बेहतर है कि अपने मन को आप खुद प्रचार करो। Hello, excuse me, Joseph. सुनिए, यहाँ पे अपने आप से कहो, Listen, सुनो, put your hope on God. अपने आप से कहो कि अपनी आशा परमेश्वर पर रख। David did not allow his soul to lead him. दाऊद ने अपने मन को अनुमति नहीं दी कि उसका मन He उसकी अगुवाई spoke करे, to his own soul. लेकिन उसने अपने आप को, अपने मन He को preached कहा। a sermon to himself. उसने अपने आप को प्रचार किया। So sometimes you must tell to your soul. कभी कभी आपको अपने मन को कहना होगा, Soul, हे मेरे मन, get up. हे मेरे मन, उठ, Hood. Get up. उठो, Worship. उठ, आराधना कर। Nobody will tell you to worship. कोई भी तुम्हें आराधना करने नहीं बोलेगा। How do I find out a true best friend in my life? मेरे जीवन में एक सच्चा मित्र मैं कैसे ढूंढूं?
The one who says, worship God. जो कहता है मुझे कि परमेश्वर की आराधना कर। But you will have a people drink chai and go to biryani shop or eat noodles. लेकिन आपके पास ऐसे लोग होंगे, बोलेंगे चलो चाय पीते हैं, बिरयानी खाते I हैं, will, noodles I खाते call हैं। them, they are biscuit wala friends. मैं उनको बोलता हूँ वो बिस्किट वाले दोस्त हैं। दूसरा माय लाल दो अरे माय I want to speak to you. मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, Speak to your soul. अपने मन से कहो, Soul, हे मेरे मन, get up. उठ। It's just like me telling to my soul, get up. मैं अपने आप को, मेरे मन को कह रहा हूँ कि उठ। Like Rajendra Masih daddy saying, get up, soul. जैसे राजेंद्र मसीह डैडी अपने आप को बोलेंगे, हे मेरे मन उठ, Worship. आराधना कर। Dr. Asha Bandari will say to herself, is like a trust God. डॉक्टर आशा बनारी अपने आप को कहेंगी, परमेश्वर पर भरोसा रख। Stop listening to your fear. अपने डर को सुनना बंद करो। For your kind information, Rahul Sandhu, fear is not a good prophet. आपकी जानकारी के लिए बता दूं राहुल संधू की डर आपका अच्छा भविष्यवक्ता नहीं है। Fear tells lies. डर झूठ बोलता है। You got to speak to your soul. आपको आपके मन को बोलना होगा, Soul, हे मेरे मन, remember what God has done. हे मेरे मन, याद कर परमेश्वर ने क्या किया है। Because worship is not just singing. क्योंकि आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है। Worship is when your spirit refuses to bow to your situation. आराधना ये है जब आपका आत्मा आपकी परिस्थितियों के सामने झुकने के लिए। Remember all the worship leaders, Manohar, Manpreet, वर्शिप लीडर याद रखो, Babuni, Johnson, Neelmani. Listen here. यहाँ सुने सभी। Worship is not singing a song, fast song, slow song, medium song. आराधना करना गीत गाना नहीं है कि अभी फास्ट सॉन्ग गा लिया, अभी स्लो गा लिया, मीडियम गा लिया। Worship is when your spirit refuses to bow to your situation. आराधना करना ये है कि जब आपका आत्मा आपकी परिस्थितियों के सामने झुकने The को। worship is saying, I will not bow down to my situation. आराधना करना ये कहना कि मैं मेरी परिस्थितियों के सामने नहीं झुकूंगा। So worship is saying, Divya saying, I will not allow the attacks to my brother. और आराधना करना ये कहना है कि मैं मेरे भाई पे कोई आक्रमण होने नहीं दूंगी। That's a real worship. ये एक सच्ची आराधना है। So what I'm trying to say, let's move a little bit further. It's taking longer than I thought. Don't wait for the earthquake to sing. आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि भूकंप का इंतजार मत करो कि भूकंप आया तब आप गीत गाओ। Paul and Silas did not say, पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा, Lord, open the prison first, ये नहीं कहा प्रभु पहले इस कैद खाने जेल को खोल दो, then we will sing. फिर हम गीत गाएंगे। Lord, open the chains, then we will sing. पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा पहले हमारी जंजीरों को तोड़ो फिर हम Lord, गीत first गाएंगे। heal our backs, then we will sing. पौलुस और सिलास ने ये नहीं बोला पहले हमारे पीठ हमारे कमर को चंगा कर फिर गीत We will गाऊंगा, worship. फिर हम आराधना करेंगे। They did not, they say, Lord, first prove yourself that you are God, then we will trust you. पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा प्रभु पहले साबित करके दिखाओ कि तुम सच्चे परमेश्वर हो फिर हम आराधना करेंगे। No, dear family. नहीं प्रिय परिवार। They worshipped before anything changed. और पौलुस और सिलास ने आराधना की जब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। Are you still waiting to be changed, everything? क्या आप अभी तक इंतजार कर रहे हो कि कब सब कुछ बदल जाएगा? Then you want to worship? और बदलने के बाद आप आराधना करोगे? That is what, where many believers lose the power. यही बहुत सारे विश्वासी इस सामर्थ्य को खो देते हैं। Many times we say, God, if you bless me, I will serve you. बहुत बार कहते प्रभु अगर आप मुझे आशीष करोगे तभी आपकी सेवा करूंगा। God, if you answer me, I will worship you. परमेश्वर अगर आप मुझे जवाब दोगे तभी आराधना करूंगा। God, if you open the door, I will trust you. परमेश्वर यदि आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे तभी आप पे भरोसा That is करूंगा। not covenant faith. ये कोई वाचा का विश्वास नहीं That है, is a bargaining faith. ये ऐसा विश्वास है मोल भाव कर रहे हो। Tonight, Paul and Silas teaching us. आज रात पौलुस और सिलास हमें सिखा रहे I हैं। don't worship God because the prison is open.
मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करता क्योंकि दरवाजे खुल गए हैं जेल I के। worship God because my God is worthy even when the prison is closed. मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ क्योंकि जब वो जेल वो कैद बंद है तब भी क्योंकि वो योग्य That है। is the kind of faith India needs. भारत को इस प्रकार का A विश्वास faith चाहिए। that does not collapse because one season is a hard season. एक ऐसा विश्वास चाहिए जो विश्वास एक सीजन के कारण ही सब बिखर ना जाए। A faith that does not stop praying because one answer is delayed. एक ऐसा विश्वास जो एक उत्तर के लिए देरी हो गई है और जो विश्वास कमजोर ना हो जाए, ऐसा विश्वास A चाहिए। faith that does not leave the church because one person disappointed us. एक ऐसा विश्वास चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति ने निराश कर दिया और चर्च को ना छोड़े, ऐसा A विश्वास। faith does not throw away calling because one door is closed. विश्वास कभी भी बुलाहट को छोड़ नहीं देता है क्योंकि एक दरवाजा बंद हो गया। When we do farming, we know that when the seed goes into the ground, जब हम खेती करते हैं हम जानते हैं जब बीज जमीन में जाता है it disappears sometimes. कभी कभी ऐसा लगता है वो बीज गायब हो गया है, Nothing is visible. कुछ भी दिखता नहीं है। If a farmer is a foolish, यदि किसान मूर्ख है he will dig up every day वो हर दिन खोदेगा and say, why is nothing is happening? और हर दिन खोदेगा और कहेगा कि क्यों कुछ नहीं हो रहा But है। wise farmer, लेकिन बुद्धिमान किसान he will wait. He इंतजार knows करेगा। the seed is working under the soil. बुद्धिमान किसान जानता है कि मिट्टी के नीचे वो बीज काम कर रहा Some of है। you are underground season. आप में से कुछ लोग ऐसे सीजन में हो कि आप जमीन के नीचे हो, Nothing is visible. ऊपर जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख No रहा। one is clapping you. कोई आपके लिए ताली नहीं बजा No रहा। one is noticing you. कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। No breakthrough is seen. कोई भी छुटकारा दिख नहीं रहा। But God is working under the soil. लेकिन परमेश्वर उस मिट्टी के नीचे कार्य कर रहा है। Don't dig up your seed अपनी उस बीज को खोदो मत because you are impatient. क्योंकि आपके अंदर धीरज नहीं। Don't give up your faith because you cannot see the fruit yet. आपके विश्वास के लिए हार मत मानो क्योंकि आप इसी समय आप फल नहीं देख पा रहे हो। What I am saying, मैं क्या कह रहा हूँ, the God, the one who works in a daytime, also works in midnight. जो परमेश्वर दिन के समय में कार्य करता है वो अधरात्रि आधी रात में भी कार्य करता है। He works underground also. वो परमेश्वर जमीन के नीचे भी कार्य करता है। So remember, इसलिए याद रखें, sing before the earthquake. याद रखें, भूकंप आए उससे पहले गीत गाओ। Pray before the answer comes. आपको उत्तर मिले उससे पहले प्रार्थना करो। Serve before somebody recognize you. कोई आपको पहचाने उससे पहले सेवा करो। Give before abundance is there in your life. आपके जीवन में बहुतायत से मिले उससे पहले आप दो। Forgive before somebody say apology to you. कोई आपसे माफी मांगे उससे पहले उसको क्षमा कर दो। Obey God before you had explanations. आपके पास परमेश्वर की आज्ञा मानो, आपके पास सारी समझ आए उससे पहले। This is a real mature Christianity. ये एक असली परिपक्व मसीहत है। Not saying, God, prove yourself. परिपक्व मसीहत ये नहीं है कि परमेश्वर पहले साबित करके Then I दिखाओ will अपने trust आप you. को, फिर मैं आप पे भरोसा करूंगा। But say, लेकिन कहे, God, परमेश्वर I trust you मैं आप पे भरोसा करता हूँ because you have already proven yourself क्योंकि आपने अपने आप को साबित कर दिया है at the cross. उस सलीब पर। The cross is enough proof for me. सलीब मेरे लिए काफी है। I don't need another proof. मुझे कोई और सबूत नहीं चाहिए। If Jesus gave his life for me, यदि यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, I can trust my Jesus in my midnight. मैं मेरी आधी रात में भी मेरे यीशु पे भरोसा कर सकता हूँ। Remember, याद रखे, when God moves, जब परमेश्वर कार्य करता है he shakes more than the chains. वो परमेश्वर जो जंजीरें बंधी हुई जंजीरों से अधिकतर चीजों को Act तोड़ up दे। 16:26 says, प्रेरितों के कार्य 16 का 26 कहता है, suddenly there was such a violent earthquake अचानक से वहां बहुत ही ज्यादा भूकंप आया that the foundation of the prison were shaken. कि वहां जेल की नींव कांप गई थी। At once all the prison doors flew open. एक बार में ही सारे कैद के दरवाजे खुल चुके थे। Everyone's chains came loose suddenly. सबकी जंजीरें अचानक से ही खुल गई। I love that word. मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। For many years, बहुत सालों तक nothing maybe seemed to be changed in your life.
बहुत सालों तक शायद ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। You are entering into a new season. आप नए सीजन, नए समय में आप प्रवेश That करते हैं suddenly God opens the door. और अचानक से परमेश्वर आपके लिए One दरवाजा suddenly खोलता है। can change a family. और अचानक से एक चीज आपके परिवार को One बदल suddenly सकती है। can change a village. अचानक से ही कुछ हो, वो गांव को बदल One सकता suddenly है। can change a ministry. एक बार में अचानक से आपकी सेवकाई One में suddenly बदलाव आ can सकता change a है। young person. एक बार ही अचानक में एक जवान व्यक्ति को And his बदल future. सकता है और उसके भविष्य को बदल सकता है। Notice the order here. यहाँ पे नोटिस करें क्या स्तर है यहाँ पे। The foundation shook. और वहां की नींव भी हिल गई Then the doors opened. और फिर दरवाजे खुल गए The chain came loose. और जंजीरें खुल चुकी थी। That means इसका अर्थ है God did not only touch the surface, इसका अर्थ है परमेश्वर ने सिर्फ वहां ऊपर वाले परत को नहीं छुआ, He touched entire the structure. परमेश्वर ने वहां जितना वहां कैद खाने का ढांचा था उसको छुआ। Some people want only chain breaking, कुछ लोग चाहते थे सिर्फ उनकी जंजीरें टूट जाए, but God wants foundation shaking. लेकिन परमेश्वर चाहता था वहां की नींव को भी हिला दे। Because if your chains fall, क्योंकि अगर आपकी जंजीरें गिर जाएंगी but your foundation remains broken, लेकिन आपकी जो नींव है, नींव ही टूटी हुई रह गई, you will create another prison outside of your prison. फिर आप अपने कैद के बाहर भी एक दूसरी कैद बना लोगे। What I am saying, dear family, प्रिय परिवार, मैं क्या कह रहा हूँ, if God blesses your finances, यदि परमेश्वर आपको आशीष करता है आपके आर्थिकता में, but does not heal your character, लेकिन आपके चरित्र को चंगा नहीं करता, money become another prison for you. पैसा आपके लिए एक दूसरा कैद खाना बन जाएगा। If God gives you marriage, यदि परमेश्वर ने आपको अच्छी शादी दी है, but He does not heal your anger, लेकिन परमेश्वर ने आपके क्रोध को नहीं चंगा किया, marriage become another prison. और आपकी शादी आपके लिए एक और दूसरा कैद बन जाएगी। If God gives you ministry, यदि परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, if God did not heal your pride, यदि परमेश्वर ने आपके घमंड को चंगा नहीं किया, ministry became another prison. आपकी सेवकाई आपके लिए एक और कैद बन जाएगी। If God gives you a platform, यदि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा स्थान दिया है, does not heal your insecurity, लेकिन आपकी असुरक्षितता को चंगा नहीं किया, platform became another prison. आपको स्थान दिया गया लेकिन वो स्थान आपके लिए एक और दूसरा कैद बन जाएगा। In another way, a TLCI can be a prison to you sometimes. दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, TLC आपके लिए कभी कभी कैद बन सकता है, If the character is not healed. यदि आपका चरित्र में आप चंगे नहीं हुए हो। He shakes wrong thinking. और वो परमेश्वर हमारी गलत सोच को हिला देता है, He shakes hidden pride. जो हमारे अंदर छिपा हुआ घमंड होता है, उस घमंड He shakes the fear. वो हमारे अंदर जो डर है, डर को हिला He देता shakes the bitterness. है, वो हमारे अंदर की कड़वाहट को He shakes हिलाता है। small thinking, small living. वो हमारे अंदर जो छोटी सोच है, छोटे जीवन में जीना है, उसे He shakes खत्म करता generational है। bondage. वो पीढ़ियों से जो बंधन है उनको तोड़ता He है। shakes fake religion. वो परमेश्वर जो झूठा धर्म है उसको हमारे जीवन से हटाता Sir, है। why, sir? सर क्यों सर? Because God is not interested in temporary relief. क्योंकि परमेश्वर थोड़े समय के लिए राहत मिल जाए इसके लिए परमेश्वर रुचि नहीं रखता। What is that? God is not interested in a temporary relief. परमेश्वर जो थोड़े समय के लिए राहत मिल जाए, थोड़े समय की राहत में रुचि नहीं रखता। He wants to have you permanent relief. परमेश्वर चाहता है कि आप सदा के लिए राहत पाओ। God does not only want you to bring you out of prison. परमेश्वर आपको केवल उस कैद से बाहर ही नहीं लाना चाहता, He wants you to take the prison out of you. वो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से वो कैद निकल जाए। That's why some deliverance will take time. इसीलिए कुछ छुटकारे के लिए समय It लगता takes है। a deeper work. इसके लिए गहरा काम करना You are पड़ता praying, है। Lord, open the door. आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु दरवाजों को खोल। God is saying, I'm healing your foundation also. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी नींव को भी चंगा You are कर praying, Lord, remove this chain. आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु इस जंजीरों को हटा दे। God is saying, I am also rebuilding your identity. परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी पहचान को भी दोबारा बना रहा You are हूँ। praying, Lord, change my situation. आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदल दे। God is saying, I am also changing you, and that is not punishment, that is love. परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें भी बदल रहा हूँ, ये मेरी सजा नहीं है, ये मेरा प्रेम है। If your breakthrough is too small,
यदि आपका छुटकारा बहुत छोटा है, See, let me say this one best way. Your breakthrough is too small if it ends with you only. और मैं इस तरीके से कहता हूँ, आपका छुटकारा बहुत छोटा है यदि वो आपका छुटकारा आपके साथ ही सीमित है। Let me close with this. The prison doors were open. आइए मैं इस बात से समाप्त करता हूँ, जो कैद के दरवाजे खुल गए The थे, chains fall. जंजीरें गिर चुकी थी। Paul and Silas could have run. They have opportunity to run away. पौलुस और सिलास के पास अभी मौका था कि वो वहां से भाग सकते थे, But the jailer woke up, लेकिन वो जेलर उठा, saw the doors open, उसने देखा दरवाजे खुले हुए and हैं thought prisoners escaped. और सोचा कि सारे कैदी जो है यहाँ से भाग गए। He was ready to kill himself अपने आप को तलवार से मारने के लिए तैयार थे, because the leaders will kill him. क्योंकि उसके और अधिकारी उसको मार देते। Then Paul shouted. फिर पौलुस ने चिल्लाकर कहा, Acts chapter 16 verse 28. और 16 का 28 वचन, Don't harm yourself. अपने आप को कोई हानि मत We are पहुंचा, all here. हम सब यहाँ हैं। Think about this. सोच के देखें इसके This बारे jailer में। was a part of the system that locked Paul and Silas. ये जेलर उस सिस्टम का हिस्सा था जिस सिस्टम ने पौलुस और सिलास को बंदी बनाया था। He was the one put them in the inner cell. वही था जिसने पौलुस और सिलास को वो अंदर की जेल He was the में one डाला। put the stocks in his feet. वही था जेलर जिसने उनके पैरों में काट डाल दिया। But when Paul and Silas had a chance to escape, लेकिन जब पौलुस और सिलास के पास मौका मिला बचने का, he did not choose to revenge. उसने बदला लेने के लिए चुनाव नहीं लिया, He chose mercy. उन्होंने दया को चुनाव लिया। That is gospel. यही सुसमाचार है। The world will say, दुनिया कहेगी, when your enemy falls, जब तुम्हारे शत्रु गिर जाएंगे celebrate. खुशी मनाओ। Jesus said, लेकिन यीशु कहता है, when your enemy is dying, जब तुम्हारा शत्रु मर रहा है, rescue them. अपने शत्रु को बचाओ। We do not enjoy our enemy's fall. हम हमारे शत्रु जब गिर जाते उनके गिरने को खुशी नहीं मनाते। We will not leave them alone. हम अपने शत्रुओं को भी अकेला नहीं छोड़ते। The real gospel, सच्चा सुसमाचार ये है, if the enemy is fall, यदि शत्रु गिर जाता we है, are called to rescue them. हम बुलाए गए कि हमारे शत्रु को हम The बचाएं। world says use your freedom to save others. दुनिया Like use your freedom for yourself. दुनिया कहती कि अपनी आजादी को अपने आप के लिए इस्तेमाल करो। Jesus said use your freedom to save others. यीशु कहता है अपनी आजादी को इस्तेमाल करो दूसरों को बचाने के लिए। The jailer fell trembling and asked, जेलर ने महसूस किया, थरथराया और उसने पूछा, what must I do to be saved? मैं बचने के लिए क्या करूं? Acts chapter 16:30. प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय का 30 वचन। Paul said, पौलुस ने कहा, believe in the Lord Jesus. प्रभु यीशु में विश्वास कर You will be saved. और तू बचाया जाए। You and your household. और वहां कहा गया है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। That night, उस रात the jailer entire family was saved. उस रात जेलर और उसका पूरा परिवार बचाया गया। One midnight song. एक आधी रात में गाया गया गीत। I'm coming back again. One midnight song मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, एक गीत जो आधी रात में गाया गया, became a family salvation. वो परिवार के लिए उद्धार बन गया। God did not shake the prison only to free Paul and Silas. परमेश्वर ने उस कैद खाने को, उस जेल को इसलिए नहीं भूकंप नहीं आया, इसलिए नहीं थरथराया केवल पौलुस और सिलास को He बचाने shook के the लिए। prison परमेश्वर ने वहां उस कैद खाने को हिला दिया, नींव को हिला दिया to save the jailer. कि उस जेलर को भी बचाए। Your breakthrough is not only for you. आपका छुटकारा केवल आपके लिए नहीं Your है, healing is not only for you. आपकी चंगाई केवल आपके लिए Your नहीं है, testimony is not only for you. आपकी गवाही केवल आपके Your लिए नहीं है, education is not only for you. आपकी पढ़ाई केवल आपके Your लिए blessing है, is not only for you. आपकी आशीषें केवल आपके लिए Your नहीं है, survival is not only for you. आपका जीवन जीना केवल आपके लिए There is a household is connected to your obedience. आपकी आज्ञाकारी के साथ एक घराना जुड़ा हुआ है। A farmer does not eat all of his seed and harvest. एक किसान जितना बीज जितना फसल लगाता है वो सारा अकेले नहीं Even खाता if he है। is hungry, he keeps seed for the next harvest. यहाँ तक कि अगर किसान भूखा भी हो वो अगली फसल के लिए बीज बचा के रखता है। Dear family, your suffering is a seed. प्रिय परिवार, आपके कष्ट एक बीज है, Your testimony is a seed. आपकी गवाही एक बीज है, Your worship, midnight worship is a seed. आपकी आराधना जो आप आधी रात में कर रहे हैं वो एक बीज If है। you waste your pain in bitterness,
अगर आप अपने दर्द को कड़वाहट में व्यर्थ you गवाओगे, lose the harvest. आप उस फसल को खो दोगे। But if you give your pain to God, लेकिन अगर आप अपना दर्द परमेश्वर को दे देंगे, He turns it into bread for others. और वो आपके दर्द को दूसरों के लिए एक रोटी में बदल देगा। Some of you survived the things that should have destroyed you. आप में से कुछ लोग ऐसे बातों में भी जीवित रहे, शायद वो बातें आपको बर्बाद कर देती। You are still there. आप अभी भी हैं। God wants to use your story परमेश्वर आपकी कहानी को इस्तेमाल करना चाहता है to strengthen someone. कि किसी को बल दे सके। You came out of the depth, आप उस मृत्यु से बाहर आ चुके हैं। help someone to manage life better. आप किसी की मदद करो कि अपने जीवन को You came out of the drug addiction, alcohol addiction. आप नशे की, शराब की लत से बाहर आए हैं। Help someone else to come out. आप किसी की मदद करो उस नशे You की came लत out से of the बाहर आने के लिए। depression. आप डिप्रेशन से बाहर आए। Sit with someone who is losing hope. आप किसी ऐसे लोगों के साथ बैठो जिन्होंने आशा को खो दिया। You came out of the family brokenness. परिवार के टूटेपन से बाहर आए। Teach another family how to rebuild the family. किसी दूसरे और परिवार को सिखाओ कि कैसे परिवारों को दोबारा You बनाना। came out of the small thinking. आप छोटी सोच से बाहर आए हो। Raise another young person to dream. और दूसरे और जवान व्यक्ति को खड़ा करो दोबारा सपना देखने A के लिए। selfish miracle is too small for the kingdom of God. एक स्वार्थी चमत्कार बहुत छोटे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। You were not small. आप छोटे नहीं You हो। were a small, like a lamp in the dark house. आप अंधेरे के घर में एक दिए जैसे, दीपक जैसे हैं। Children may say, Daddy, this light is too small. शायद बच्चे कहेंगे, डैडी ये लाइट बहुत छोटी है। What can it do in this big darkness? इतने बड़े अंधेरे में छोटी सी लाइट क्या कर सकती है? And the grandmother said, और दादी कहती हैं, Wait. रुको। She lit the lamp और वो दीपक जलाती है and placed it near the window. और खिड़की के पास रखती है। That small lamp वो छोटा सा दीपक did not remove darkness from the whole village. पूरे गांव से अंधेरे को नहीं हटा देता है, But one traveler can walking on the muddy road. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उस अंधेरे में रास्ते में चल रहा है वो चल सकता है। Saw the light. उसने देखा उस लाइट He को came near to the house and found a shelter. और घर के पास आता है और वहां रहने के लिए जगह पाता Then है। another person saw it. फिर दूसरा व्यक्ति देखता है। By morning, सुबह many people had found safety because of one small light in where grandmother put. बहुत सारे लोगों ने सुरक्षा पाई क्योंकि एक दीपक जो उस दादी ने जलाया और रखा है। Your worship may look small. शायद आपकी आराधना आपको अभी छोटी दिखती Your हो, prayer may sound weak. शायद आपकी प्रार्थनाएं आपको अभी कमजोर Your लगती faith may feel tired. शायद आपके विश्वास में आप थक चुके But होंगे। when you keep lamp burning लेकिन जब आप अपने दीपक को जलाए रखते हो in the midnight, आधी रात में भी, somebody else will find the way. कोई ना कोई है जो रास्ते को ढूंढ दे। Your family needs your lamp. आपके परिवार को जरूरत है, Your village needs your lamp. आपके गांव को जरूरत है, Your आपके city needs your lamp. आपके शहर को आपके इस दीपक Your की जरूरत generation है। needs your lamp. आपके पीढ़ियों को उस दीपक की Do जरूरत not है। let the storm blow out your worship. जो आपके तूफान है वो आपकी आराधना को ना हटाने पाए। One singing believer in midnight एक ऐसा विश्वासी जो आधी रात में गीत गा रहा है became a lighthouse for many drowning people. वो बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइट हाउस बन रहा है, जो लोग अंधेरे में गिर रहे हैं, डूब रहे हैं। 3 questions that everybody should ask tonight. 3 ऐसे सवाल हैं जो आज रात सभी को पूछने हैं। What is your midnight? आपकी आधी रात क्या है? Name it honestly. ईमानदारी से उसे नाम दे। Is it fear, क्या आपकी आधी रात डर है, debt, कर्जा है, marriage, शादी है, pain, दर्द है, sickness, बीमारी है, children, बच्चे हैं, future, भविष्य है, failure, असफलताएं, loneliness, अकेलापन, secret sin, गुप्त पाप, loss of hope? आप आशा खो चुके हैं। Maybe your midnight. शायद ये आपकी आधी रात हो सकती है। Don't hide it from God. परमेश्वर से छिपाएं मत। The prison you name before God जो कैद परमेश्वर के सामने आप नाम देंगे can become a place that God can shake. वो एक ऐसी जगह बन सकता है जो परमेश्वर उस जगह को वहां हिला सकता है। You have to name your prison आपको आपके कैद खाने को नाम देना so होगा that God can shake that prison foundation. ताकि परमेश्वर उस कैद के नींव को हिला सके। Second question. दूसरा सवाल ये Will है, you sing क्या आप गाएंगे before earthquake?
भूकंप आने से पहले, Not everything after became good. सब कुछ अच्छा होने के बाद नहीं, Now, अभी, while the still chains are there, जब अभी भी जंजीरें हैं, while the answer is still delayed, जब अभी भी देरी हो रही है जवाब, while the report is still uncertain, जब अभी भी आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, while the door is still closed, जब अभी भी दरवाजा बंद हो चुका है, will you say, क्या आप कहेंगे, Jesus, यीशु, I trust you? मैं आप पे भरोसा करता हूँ? The third final question. तीसरा आखिरी सवाल है, Who must be saved through your story? तीसरा आखिरी सवाल है, आपकी कहानी के द्वारा कौन बचाया Who जाए? is your jailer? आपका जेलर कौन है? Maybe your children, शायद आपके बच्चे, maybe your husband, शायद आपका पति, maybe your wife, शायद आपकी पत्नी, maybe your parents, शायद आपके माता पिता, maybe your brother, शायद आपके भाई, maybe your sister, शायद आपकी बहन, maybe your village, शायद आपका गांव, maybe your workplace, शायद आप जहाँ काम करते हैं, maybe the young people watching your life. शायद जवान लोग जो आपके जीवन को देख Your रहे हैं। pain is not only a problem. आपका दर्द केवल समस्या नहीं है, In God's hands, परमेश्वर के हाथों में it can become a pulpit. आपका दर्द परमेश्वर के हाथों में एक पुलपिट बन I सकता want to है। pray for you मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। today. आज If you are in midnight, यदि आज आप भी एक आधी रात में हैं, come to Jesus. यीशु के पास आओ। Do not wait until you become strong. इंतजार मत करो कि कब आप मजबूत बनोगे। Come as a weak person. आप कमजोर हो, कमजोर होकर ही आओ। Do not wait until your chains fell off. जब तक आपकी जंजीरें गिर ना जाए तब तक इंतजार मत करो। Come with chains. जंजीरों के साथ आ जाओ। Do not wait until your tear stops. आप इंतजार मत करो, जब आंसू रुकेंगे तब आओगे। Come to Jesus यीशु के पास आओ, with the tears. आंसुओं के साथ ही उसके पास आओ। Jesus is not afraid of your prison. यीशु आपके उस कैद खाने से डरता नहीं। I want to go in every home and tell this. मैं हर घर में जाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, He is not afraid. वो डरता नहीं है। He is not afraid. वो नहीं डर रहा। He entered the deepest darkness of the cross. और वो जो सलीब का गहरा अंधेरा था, He गहरे entered अंधेरे the में grave. यीशु मसीह कब्र में गया And the third day he rose again. और तीसरे दिन वो फिर से जिंदा हुआ। So your midnight तो आपकी आधी रात is not stronger than his resurrection. आपकी आधी रात उसके पुनरुत्थान से मजबूत नहीं है। Shall we say? क्या हम कहेंगे, My midnight life, मेरी आधी रात का जीवन, my prison, मेरा कैद, my problems, मेरी समस्या, my enemies, मेरा शत्रु, my challenges मेरी चुनौतियां are not stronger than my Jesus resurrection. मेरे यीशु के पुनरुत्थान से मजबूत नहीं है। Today, open your mouth again. अपने मुंह को फिर से खोलें, Pray again. फिर से प्रार्थना करें, Worship again. फिर से आराधना करें, Believe again. फिर से विश्वास करें, Dream again. फिर से सपना देखें, Stand again. फिर से खड़ा हों। Because when midnight starts singing, क्योंकि जब आधी रात में गीत गाना शुरू करते हैं prison starts shaking. और वहां कैद खाने में सब थरथराना शुरू होता है। Don't stuck with your problems. अपनी समस्याओं के साथ मत फंसे रहो। I request our media team to do some editing and cut off the first worship and the ending, and I want you to make sure and upload in YouTube. हमारे मीडिया टीम को कह रहे हैं कि वर्शिप को जो है कट करके इसको एडिट करके हम YouTube पे जरूर इसे अपलोड Something is करेंगे। there here. यहाँ कुछ ना कुछ है। Somebody is getting delivered right now. आज कोई ना कोई है जो इसी समय छुटकारा पा Something रहा is happening right now in Manohar's heart. है। इसी समय कुछ ना कुछ हो रहा है इस हृदय में। Something is taking right now. कुछ ना कुछ इसी समय जगह ले रहा है। Something. कुछ ना कुछ। Give a chance to God. आज परमेश्वर को मौका दो। You have given many chances to many people. आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मौके दिए You हैं। trusted many people. बहुत सारे लोगों पे भरोसा You किया, trusted money. पैसे पे भरोसा You किया, trusted leaders. अपने अगुओं पे You भरोसा trusted किया, government. आपने सरकार पर भरोसा किया। Can you trust again Jesus? क्या आप फिर से यीशु पे भरोसा कर सकते हैं? Can you try again? क्या आप फिर से कोशिश कर सकते हैं?
Believe again. फिर से विश्वास करें, Come again. फिर से आए, Trust again. फिर से भरोसा करें, Stand again. फिर से खड़े हों। Speak to your soul like David spoke. जैसे दाऊद अपने मन से कहता है, You know, I think वैसे maybe sometimes you have to sit like this. कभी कभी शायद आपको ऐसे बैठना होगा, What happened, Joseph? अपने आप को कहना होगा, क्या हो गया, अपना नाम लेके कहना होगा, Stand up. उठ, Believe. उठो, यकीन करो, Dream again. फिर से सपना देखो, You were stronger. तुम मजबूत हो। Your problems are not stronger than the resurrection of Jesus. की समस्या यीशु के पुनरुत्थान से बढ़कर नहीं है। When the midnight starts singing, जब आधी रात में भी वो गीत गाने शुरू, prisons start shaking. सारे जितने भी कैद की नींव थी सब हिलनी शुरू हो गई। Say with me this prayer. मेरे साथ मिलके ये प्रार्थना करें। It's kind of a prayer and a declaration over your life. प्रार्थना और आपके जीवन पे घोषणा है। Put your hands on your heart, everybody. सभी लोग अपने हृदय पे अपना हाथ रखें। This is a time, something that God and the heaven is going to do something in your ये life. समय है जो परमेश्वर और स्वर्ग आपके हृदय में कुछ करने Something का is going to take place right now. इसी समय कुछ आपके हृदय में इस जगह ले रहा Say है। it with me. मेरे साथ मिलके कहें, My midnight is not my end. मेरी आधी रात मेरा अंत नहीं है। My prison is not my identity. मेरी कैद मेरी पहचान नहीं है। My chains are not stronger than my God. मेरी जंजीरें मेरे परमेश्वर से मजबूत नहीं है। I will worship my Lord मैं मेरे प्रभु की आराधना करूंगा before the earthquake. और भूकंप आने से I पहले। will worship the Lord मैं मेरे प्रभु की आराधना करूंगा। before I see breakthrough. मैं छुटकारा देखूं उससे I will पहले। worship the Lord in the middle of my challenges. मैं मेरी चुनौतियों के बीच में मेरे प्रभु की आराधना I will करूंगा। sing before the door opens. दरवाजे खुलने से पहले मैं गीत को And गाऊंगा my breakthrough will become someone else's testimony. और मेरा छुटकारा किसी और की गवाही बन जाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से Everybody say Amen. सभी जन मिलकर कहें आमीन। Everybody say Amen. सभी जन कहें आमीन। Father, I bless each and everybody tonight. पिता आज रात में प्रत्येक Lord, seal every word in their hearts by the power of the Holy Spirit. प्रभु उन हर एक वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से We want to सील hear कर। something powerful is taking place in their life and families. प्रभु हम सुनना चाहते हैं कि उनके जीवनों में ये परिवारों में सामर्थ्यशाली बात होने पाए। Come and touch them, Lord. प्रभु आए और आप इन्हें छू, Restore them like never before. उन्हें पहले से कहीं बढ़कर फिर से Heal them चंगा like कर। never before. उन्हें फिर से चंगा कर, Make them strong like never before. उन्हें फिर से मजबूत कर, पहले Help से them to dream बढ़कर। again. उनकी फिर से सहायता Help कर, them to सपने hope देखने again. की। उनकी सहायता कर फिर से आशा रखने की, Worship again. फिर से आराधना Pray करने के again. लिए, फिर से Read again the word. फिर से वचन पढ़ने के लिए। We bless them spiritually, physically, financially. हम आशीषित करते हैं आत्मिक, शारीरिक और Until we आर्थिक come रीति back से। again, Lord. जब तक हम Keep वापस your आएं। presence 24 hours. आपकी उपस्थिति को 24 365 days. 365 With the full दिन of health and the wealth and the strength. स्वास्थ्य के साथ, बल के साथ, अच्छी Wherever they समृद्धि के go, साथ। whatever they speak and whatever they do will prosper in Jesus. जहां भी वो जाए, जो भी वो करे, यीशु के नाम से उन्नति को पाए। Let many people come to know you through them, Lord. बहुत सारे लोग उनके द्वारा आपको जानने पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Father, we bless each and every one. पिता हम प्रत्येक को आशीषित करते In the हैं। name of God the Father, पिता, God the Son, पुत्र, God the Holy Spirit. पवित्र आत्मा May के you नाम walk से। with them. आप उनके संग चलते Protect them रहें। from all the danger and evil and temptation. हर एक दुष्टताई से, हर लालसा से, हर एक बुराई से उन्हें बचाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen.